जय सो हंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय सो हंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। परमेश्वर ने अपनी वो खेल मातलोक विच कीती जिस बारे कोई भी जान नहीं सी सकिया। उस परमात्मा दा नूर, वो प्रकाश, जिस प्रकाश के विचों परमेश्वर ने तुहानू मातलोक विच आके मान दिता ते अपने प्रकाश के विच ही तुहानू समा लेना। हजूर शहनशाह जी ने बड़ा स्पष्ट हर बाणी दे विच दस्या है कि ऐ गुरसिखो, मैं तुहानू अपने नूर दे विचों ही भेजिया है ते तुहाडे नाल कीता होया वायदा मैं निभा के ते अपने विच ही समा लेना है। परमेश्वर दा नूर, ओ प्रकाश, क्योंकि परमेश्वर ने प्रकाशवान आप है, प्रकाशवान आप होके अपनी अगमता दी खेल कीती। बिना किरपा तो ना ही तो कोई भगत बन सकिया ते ना ही प्रभु दे चरनां विच कोई नमस्कार कर सकिया। हर बाणी सुनते हाँ, हर बाणी पढ़ते हाँ, पर सर्ब हर संगत जी अज हर बाणी दे दसे होए निजमा अनुसार जो परमेश्वर ने लागू किए ने, सानू अज उन्हां ते चलण दी जरूरत है। परमेश्वर दा एक हुक्म मान लईए कि गुरमुखो जींदियां जग जाना जीत, मरिया तो बाद मरन दी लोड़ रहे ना रही। तुसे जींदे जी जग जितना, ये गल दावे ना कहनी, सतगुर पूरा पाया सगली मिटी प्यास। परमेश्वर मिलिया है, परमात्मा मिलिया है ऐसे रूप दे विच जेड़ा पहला कदी अज तक उस सत स्वरूप नूं अज तक कदी किसी ने तकिया ही नहीं सी। परमेश्वर ने अपने सत स्वरूप नूं मातलोक विच मुखातब करके तुहानू अपना दर्शन दीदार दिता, क्योंकि परमेश्वर दा दर्शन कदी मिल सकदा नहीं सी। परमेश्वर दा दर्शन करना ही साडे लई सब कुछ है। जे खेड़ा छडाउणा कोलों बाणी दर्शन करके अपनी खुशी लैनी मनाई है, इस दर्श की वडियाई है। परमेश्वर दा दर्शन करन दे नाल सर्व हर संगत जी सारे दुख रोग दूर हो जाते ने। परमेश्वर दा दर्शन करन दे नाल तुहाडा चिंता ते सोग दुख रोग खत्म हो जाते हैं। परमेश्वर दा दर्शन करन दे नाल ही तुसी उस नूर नूं तकदे हो जिहड़ा कदी किसी ने तकिया ही नहीं। हजूर शहनशाह जी ने हर बाणी दे विच फरमान किया कि भगत ते भगवान एक दूजे नूं की कहंदे ने। भगत भगवान एक दूजे नूं कहण, तू मेरा मैं तेरा, दूजा संगी नज़र कोई ना आई। परमात्मा ते आत्मा, आत्मा ते परमात्मा दी मिलनी होई। परमेश्वर ने तुहाडी मिलनी आप आके कीती, इस दे विच कोई शक की गुंजाइश है ही नहीं।
ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਾਂ ਭਗਤ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਭਗਤ ਬਣਿਆ ਹਾਂ। ਭਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜਣਾ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਆਦਿ ਜਗਾਤ ਦਾ ਸੱਚਾ ਦਸਤੂਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਕਿਹਾ, ਸੁਣੋ ਸੱਚ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪੇ ਹੀ ਨਿਰਗੁਣ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸਰਗੁਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਦੇ ਜਨਾਈਆ, ਦੋ ਜਹਾਨਾ ਨੂਰੀ ਚੰਦਾ, ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਕਰੇ ਰੁਸ਼ਨਾਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੂਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਉਹ ਚਾਨਣ ਕੀਤਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕਠਨ ਤੋਂ ਕਠਨ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹਰ ਬਚਨ ਸੱਤ ਦੀ ਤਾਰ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਬਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਰਬ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਅਟਲ ਦਾ ਅਟਲ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮਾਣ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਹੋਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਤੇ ਦੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁੱਤ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ਦਾ ਹਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੇਲ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਬੱਬੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੂਰ ਇਲਾਹੀ ਰੱਬਿਆ। ਨੂਰ ਇਲਾਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪੇ ਬਣਿਆ ਪਿਤਾ ਤੇ ਆਪੇ ਬਣਿਆ ਮਾਈ, ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਨੂਰ ਇਲਾਹੀ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਲ ਕੀਤਾ। ਸਰਬ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਤ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨ ਪਾਕ। ਜੋ ਸਰਬ ਹਰ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਿਆਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਆਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪੇ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸਰਗੁਣ ਹਾਂ। ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਰਬ ਹਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਚਿੱਟ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਕਈਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਚਿੱਟ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚਿੱਟ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਆ ਜਾਣੇ ਉਸ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਲੀ ਚਿੱਟ ਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚਿੱਟ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚਿੱਟਾਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਹਥੇਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗਾਈਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵਣ ਟਿਕਦੇ, ਸਰਬ ਹਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵਣ ਟਿਕਦੇ, ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਲਗਾਈਆ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਇੱਕ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਆਤਮਾ ਇੱਕ। ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
हजूर शहनशाह जी ने हुक्म किया, जिस वेले भगतां दा भगवान बन के बापू, भगतां दा भगवान बापू बनया, जिस वेले भगतां दा भगवान बन के बापू बाबल होके फेरा पाईया, बाबल होके फेरा पाया परमेश्वर ने, तुहानू भगतां नू अपने बच्चे बना लिया। बापू दे नाल परमेश्वर आगू भी आप बने। इस तरह हजूर शहनशाह जी ने फरमान किया हर बाणी दे विच, ओ सरगुण निर्गुण तार आया दुबारा, कल कलकी फेरा पाईया, जिस दियां शब्द शब्द अखबारां दो जहान करे शनवाईया। परमेश्वर ने शब्दी तार दे विच ही अखबारां, क्योंकि हजूर शहनशाह जी ने कहा, मेरा प्रचार कदी होवे ना अखबारी इश्तिहारी, मेरा प्रचार अखबारी इश्तिहारी नहीं होवेगा, मेरा अपना प्रचार अपने बारे मैं संसार नू आप दसांगा, किसे नू दसन दी जरूरत नहीं। भगवान होके परमात्मा होके मैं हर जीव दे अंदर एक बाण अणियाला तीर इहो जिहा अपने प्रेम दा लगाऊंगा कि मैं जिस ते किरपा करनी उसनू अपने चरनां दा धारनी बनावांगा। जिस दे शब्द अखबारां दो जहान करे शनवाईया, वो सब दा मालिक ज़ाहिरा ज़ाहिर ज़हूर डग मगाईया। वो परमेश्वर सब दा मालिक है, क्योंकि परमेश्वर च कदी कोई अंतर नहीं आया। जदों अंतर आउंदा साडी सोच दे विच आउंदा। जदों असीं अपने भगवान नू भगवान मन ही लिया ते फिर सरबहर संगत जी कोई गल बाकी रह जाती नहीं। अज जरूरत है परमेश्वर दे उपर विश्वास रखन दी। अज समय दी मंग है अपने परमात्मा दा सिफती ढोला गाउण दी। ज्योति जो स्वरूपा राप अपनी किरपा कर करे खेल साचा हर सच दा हुक्म एक वरताई। सदी 14वीं कहे मैं तूड़ी लावां खाक टिक्के खुशी वाली रमाइया। अंत जोड़ के दोवें हाथ सीस देवां चकाइया। तू साए पुरख सम्राट दाता इक अखवाइया। जेड़े हर भगत तेरे साथ अंतश करन सब दा वेख विखाइया। ये लिखत पहली विदेश यात्रा दी है कि जो भगत नाल सी सत, उन्हां दा अंतश करन उस वेले किहो जिहा सी। सत्तां विचों कईयां दा अंतश करन प्रभु प्यार विच बनदा सी ते कईयां दा झगड़े वाल बनदा सी। अंतश करन सब दा वेख विखाइया। तेरे प्यार दा पूरन करन वाख। वाकफ कार दिसे खलक खुदाइया। मैं लैना देना जाना दिवस रात। खोजां चाई चाइयां ज्योति जो स्वरूपा राप अपनी किरपा कर करे खेल साचा हर सच दा हुक्म एक सुनाइया। तारा चन्न कहने असी चुल्ले सच सच्ची दरगाह, दरगाह साची मिली सरनाइया। सरबहर संगत जी टर्की इस्तांबुल दे विच विहार होया। शहर तो बार बार आटोमोबाइल दे दफ्तर दे खब्बे पासे बैठ के हजूर शहनशाह जी ने उस दिन अपने सीस के उपर पहली विदेश यात्रा च पहले दिन पंचमुखी ताज नूं सुशोभित किया। विहार दे विच दस्सिया गया कि 101 मील ते जाके तारे चंद का निशान चलाया जाएगा चिकलुक पिंड दे कोल। हजूर शहनशाह जी ने हुक्म देता सवेरे चलन का। तकरीबन 10 बजे चिकलुक पिंड दे कोल पहुँच गए। पिंड तो शायद पिछे रह गया होवेगा। हजूर शहनशाह जी ने सड़क दे
सज्जे पासे कार रोकण का हुक्म दे दिता। उत्थे एक छोटी जी कच्ची दीवार बनी सी, जिथे तारा चंद का निशान 101 के फासले ते चलाया गया कि आने वाला समा गवाही भरेगा इस जगह की कि परमेश्वर इत्थे आया। परमेश्वर ने अपने समय दे नाल अपनी गल आप करनी है, क्योंकि परमेश्वर ने फरमान किया कि गुरसिखो मैं समय दे नाल अजिहा पलटा करना जिहदी मैं किसी नूं समझ आउण देनी ही नहीं। जिस वेले कलयुग पैंडा मुक्का अगे अवर ना कोई वधाइया, उस वेले हुक्म होना दो तुक्का। जिस वेले कलयुग का अंतिम समा आवेगा, पैंडा खत्म, परमेश्वर ने तो करता कलयुग का समा खत्म, सतयुग की तार नूं शुरू करता शहनशाही समत 1 तो। उस वेले हुक्म होना दो तुक्का, हुक्म दो तुक्का होवेगा परमेश्वर दा। तू मेरा मैं तेरा नाम जनाइया। हर जीव हर दे अंतर आत्मा दे विचों आवाज़ आएगी, हे अकाल पुरख तू मेरा ते मैं तेरा। तू मेरा मैं तेरा नाम जनाइया, सदी 14वीं चंद सतार सीस होना चुका, गोबिंद सतगुर शब्द दे गवाइया। उस वेले चंद सतार दा सीस चुकिया होवेगा। पूरन सतगुर परम पुरख पूरन होना पिता, पत परमेश्वर इको नजरी आईया। परमेश्वर दा एक रूप है, एक रूप विच ही परमेश्वर नजरी आएगा। ज्योति जो स्वरूपा राप अपनी कृपा कर करे, खेल साचा हर सच दा हुक्म आप सुनाइया। तरनी कह मेरा साहिब आया मेरे कंडे, तुर्की तार दे गवाइया। तरनी कह रही कि मेरा परमात्मा मेरे कंडे ते आया है, तुर्की दे विच मेरा परमात्मा आ गया है, जिसकी गवाही तुर्की तार ने भी दे दी है। जिवें जिवें लेख तिवें तिवें मुकदा, हजूर शहनशाह जी ने जिस धरती का लेख देना हुंदा सी, अपने हुक्म ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਉੱਥੇ ਕਰ ਦੇ ਕਿ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਕੀਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਲਯੁਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਬ੍ਰਹਮਤ ਉਹ ਸਾਰੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਦੁਆਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਰ ਜੀਵ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੱਤ ਤੇ ਸੱਚ 'ਤੇ ਆਪ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। तरनी कह मेरा साहिब आया मेरे कंडे, तुर्की तार दे गवाइया, मेरा सीना करे ठंडे ठंडक एक वरताइया। कि परमेश्वर ने मेरे ते कृपा करती। तरनी कह रही है तुरदा कलमा तुर हुक्म विच वंडे, जग नेत्र नज़र किसे ना आईया, गुरमुखां दे कर दे खा के गंढे, गंढा सब दियां रिया खिलाइया। परमेश्वर ने कर भोग लगाया। ਸਰਬ ਹਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਲ ਬਾਵਨ ਦੇ ਪਿਛਲੀ ਧਾਰ ਦੇ ਲੈਣੇ ਦੇਣੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਰ ਭੋਗ ਲਗਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਤਾਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵੇਖੇ ਚੰਡੇ, ਤਾਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਰਦਾ ਨਾਲ ਚਲਾਈਆ। ਇਹ ਖੇਲ ਪੁਰਾਣਾ ਖੇਲ ਸੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਲੇਖ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਬਿਨ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਾ ਸੰਭੇ, ਸੰਭਲ ਬੈਠਾ ਨੂਰ ਅਲਾਹੀਆ। परमेश्वर तो बिना कोई इस बारे जान नहीं सकता। परमेश्वर संभल दे मालक ने अपनी खेल आप की।
चट शब्द सुनिया सब दे लेखे मुकने नाल सोहं खंडे, सब दे लेखे सोहं खंडे दे नाल मुकने है, तू मेरा ते मैं तेरा। जगत खड़गना कोय चमकाइया, उस वक्त तरनी कहे मेरे पीरां दया पीरा, अमीरां दया अमीरा, ला तस्वीरा की तेरी सेव कमाइया, तेरा नूर अनमुलड़ा हीरा, हीरे रतन जवार मोती की तेरे चरण टकाइया। उस वक्त 14वीं सदी ने ये बयान करता कि परमेश्वर मैं तेरे चरनां दे विच की अर्पण कर सकदी हाँ। ਸਰਬਹਰ ਸੰਗਤ जी, परमेश्वर ने ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਖੇਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਹ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। हर गल ते परमेश्वर ने सिक्ख्या दिती, मेरा भगत किहो जिहा होना चाहिदा है, मेरे सिख दी मर्यादा की होनी चाहिदी है, क्योंकि सिख ही एक सच्ची मर्यादा है। सतयुग सत दी धार दी मर्यादा हर गुरसिख है। हर गुरसिख नूं मर्यादा परशोत्तम ने मर्यादा दे विच रखिया। मेरा गुरसिख झूठ ना बोले, मेरा गुरसिख निंदिया चुगली तो रहत हो जावे, मेरे सिख अंदर सिर्फ मेरा नाम ही विस्माद होवे, मेरे सिख दी अंतर आत्मा विचों मेरे नाम दी आवाज़ निकले, हे सतगुर तू मेरा ते मैं तेरा। कि अज असीं इन्हां प्रक्रिया ते चल सके हैं? सानू अज चलण दी जरूरत है। परमेश्वर दे हुक्म नूं मनना। सर्वहर संगत जी, असीं बाणी पढ़ी जाने सुनी जाने, पर अज लोड़ है अकाल पुरख दे हुक्म नूं मनण दी, अकाल पुरख दे उत्ते विश्वास रखण दी। गुरसिख जीवे गुर परवासे। जिन्ना चिर साडा विश्वास अपने भगवान अपने पर ब्रह्म परमात्मा ते नहीं हुंदा, उन्ना चिर सर्वहर संगत जी कोई गल बन सकदी नहीं। परमेश्वर आया, परमेश्वर ने मातलोक विच आके नवेकली खेल करके अपने सीस के उपर पंचमुखी ताज नूं सुशोभित किया। ताज क्यों लाया? सिर्फ तुहाडी खातर। परमेश्वर ने पंचमुखी ताज नूं मान देता सिर्फ तुहाडी खातर कि मैं पंचम शब्द का मालक हाँ। पंचम शब्द की धार नूं मुखातब किया, तानू गुरमुखां नूं मान दे दिता। जो पंचमुखी ताज दे उपर लाल नग ने कि तुसी मेरे ओ गुरमुख हीरे जो जिन्हां नूं मैं अपने ताज दे उत्ते टका लिया। परमेश्वर दा परमेश्वर दा रूप किहो जिहा होवेगा मातलोक विच? ओदी सूरत होनी अंतम श्री भगवान दी, ओदी सूरत होनी अंतम श्री भगवान दी। जो संभल बह के अपना खेल खिलाइया। परमेश्वर ने अपना खेल आप किया कि भगवान यही साडा भगवान है जिसने मातलोक दे विच आके नवेकली खेल कर दी। उस दी वडियाई जन भगतो गुरमुखो होनी तन तन दी। उस दी वडियाई जाने भगतो गुरमुखो होनी तन तन दी। तन तन करे लोकाइया। परमेश्वर दी वडियाई तन तन दी होवेगी। क्यों परमेश्वर नूं असीं तन कहने हाँ? क्योंकि परमेश्वर ने आप किरपा करके साडे तन पाग कर दिते कि तुसी मेरे भगत ते मैं तुहाडा भगवान हाँ। इसे तरह हजूर शहनशाह जी ने पहली विदेश यात्रा दे विच अजिहियां हदायतां कीतियां कि गुरमुखो
मैं संभल दा मालक हो के तुहानू एक गल दा संदेश दिना हाँ। ये लिखत कुशादीप दी है, जिथे कि साखात परमेश्वर ने सर्वहर संगत नू दर्शन दिते कि ये दोबारा समा तुहानू नहीं मिलेगा। परमेश्वर ने फरमान किया कि बीत्या होया समा मैं तुहानू दोबारा वापस नहीं देवांगा। ते परमेश्वर दा जो सिख है, जो भगत है, जो अपनी अंतरात्मा तो अपने परमात्मा नू याद करदा, ते परमेश्वर दा फरमान कि उसका समा मैं इक्को जिहा कर देना, उस दे विच मैं कदी कोई अंतर रखदा ही नहीं। हजूर शहनशाह जी ने फरमान किया, ए खेल सूरे सर बगदी जो शहनशाह एक अखवाइया, ओ सूरत उसे दी जिस दे नाल गुरमुखां दी आत्म प्यार विच फबदी, प्रेम विच बह के इको कार शोभा पाइया। परमेश्वर ने कोई किसी ना वितकरा नहीं रखा। परमेश्वर ने हर गुरसिख नू इक्को जिहा मान दे दिता। सर्वहर संगत जी, परमेश्वर दा दिता होया मान सिख जां भगत कदी भी अजाही नहीं जान दिता, क्योंकि परमेश्वर दा फरमान है कि ऐ गुरमुखो, दुनिया की है, सृष्टि की है, संसार दी सृष्टि की देखती है, हाहे ते होड़ा, भगतां दी दृष्टि सस्से ते होड़ा। संसार अपनियां खाशां दे विच खत्म हुंदा जा रहा है, ते जिहड़ी भगतां दी दृष्टि है वो सस्से दे उपर होड़ा है। वो अपना नाता अपने पार ब्रह्म परमात्मा दे नाल जोड़दी है। क्यों दुनिया अपना मुख रखदी रही स्वार्थ, दुनिया ने अपना स्वार्थ मुख रख लिया, जगत आसा विच लगाइया। प्रभु दा प्रभ बिन जाने ना कोई परमार्थ, परदा सके ना कोई हटाइया। प्रभु दा प्रभु बिना कोई परमार्थ दा मार्ग जान सकदा नहीं। सर्वहर संगत जी, परमेश्वर ने कुछ असूल दसते, तुहानू निज़म दस दिते ने कि ऐ गुरमुखो, तुसी मेरा अकाल पुरख दा ही एक इष्ट रखना। सोहंग शब्द दी दात तुहाडी चोली दे विच रख दिती है, क्योंकि गुरसिख दी अंतरात्मा विच एक सच्ची प्रक्रिया होनी चाहिए है, एक सच्ची खाश होनी चाहिए है। अठे पैर दिवस रहन अपनी अंतरात्मा दे विचों इक्को आवाज़ देवे, हे परमेश्वर तू मेरा ते मैं तेरा। सर्वहर संगत जी, है तो ये कठिन है, पर इस कठिन नूं ही परमेश्वर ने सहज करता। जदों गुरसिख अपनी अंतरात्मा तो अपने प्रभु दे चरनां दे नाल जुड़दा है, अठे पैर उस नाल। क्यों परमेश्वर ने फरमानता, जिन्हां दे अंदर वस गया हरि, जिन्हां दे अंदर परमात्मा ने अपना वास रख लिया, उन्हां नूं लोड़ नहीं बस्तर पहनण जरी, उन्होंने लोड़ नहीं संसार दे बस्तर पहनण दी। जरे जरे विच अपना आप समाइया, मैं जरे जरे दे विच वसदा हाँ, मैं तुहाडा भगवान हाँ ते तुसी मेरे भगत जो। हजूर शहनशाह जी ने हुक्म देता कि गुरमुखो, तुसी अपने जीवन नूं सादे ढंग विच कह के अजिही निर्माणता दा पक्ष लै लो, तुहाडे अंदर निंदिया चुगली ना होवे, तुहाडी अंतरात्मा विच मेरा विश्वास होवे, तुहाडे अंदर सच दी प्रक्रिया होवे, तुहाडा भगवान तुहाडे अंदर है, तुहाडा भगवान तुहाडे नाल है, तुहाडा भगवान तुहाडे सामने सत संघासन ते विराजमान है। इस दे विच कोई शक नहीं, भगवान है। जे भगवान है तो भगत है, जे भगवान नूं आपां नहीं मानते तो असीं भगत भी नहीं बन सकते। क्योंकि हजूर शहनशाह जी ने कहा कि अज तो परण कर लो, तू ही साडा पिता ते तू ही साडी माई आ। ठीक है सर्वहर संगत जी, परमेश्वर अकाल पुरख जिथे तुसी मैनू याद करोगे, जिस वेले पंजां जयकारियां दे विच मारोगे आवाज़, तुहाडी अंतर आत्म होवा सहाइया। सर्वहर संगत जी, पर भुल विच आके कदी परमेश्वर नूं परखना नहीं, क्योंकि मैं तो सारिਆਂ दा पारखू हाँ, तुसी मैनू की परखोगे।
मैं तुहानू ग्रह ग्रह फिरां लभदा, तुहानू कर कर सदे दे के ग्रह ग्रह जाके लभ्या। आओ मेरे भगतो मैं तुहाडा भगवान, मेरा दर्शन करके अपना मानस जन्म सफल कर लो। यही परमेश्वर की वडियाई है। जदों परमेश्वर के चरणों च नमस्कार करते जो हजूर शहनशाही का हर बाणी विच फरमान है, क्योंकि मैं 2-4 अल्फाज कह के खिमा मंगूंगी। हजूर शहनशाह जी का फरमान है कि जदों सिख मेरे कोल बेनती करता है, मेरे अगे अर्जोई करता है, मेरे अगे अरदास करता है, उन्होंने कुछ मंगण की जरूरत नहीं। मैं तो बाप हाँ, मैनू पता मैं अपने बच्चों दी चोलियां किस तरह भरनियां ने। सरबहर संगत जी, जे मंगना ते चरण प्रीति मंग लैनी, तेसे अगे अरदासे जो सुने पुकारे, उस परमात्मा अगे अरदास करनी, अरजोई करनी, बेनती करनी। हे अकाल पुरख, असी तेरे चरना दे दास हाँ। हजूर शहनशाह जी ने फरमान किया कि मैनू मात लोक विच आउण दी जरूरत नहीं, मैं ते तुहाडा करजा लाउण वास्ते ही मात लोक विच आया हाँ। सरबहर संगत जी, परमेश्वर तो जो मंगदे जो सो मिलता है, पर चरना की प्रीत जरूर मंगनी। नमाणे हो के निताणे हो के अपने प्रभु दे चरना दे दास हो के, जिन्ना चिर दास नहीं हुंदा गुरसिख, जिन्ना चिर निर्माणता का पक्ष नहीं लैंदा, जिन्ना चिर उहदे अंदर हलीमी नहीं आउंदी, जिन्ना चिर प्रभु की याद अठे पैर दिवस रहन। बिन तीरों गुरमुख हिरदा विदा, अणियाला तीर चलाइया। अणियाला तीर परमेश्वर चलाउंदा है। ते परमेश्वर दा फरमान है कि जे तुहानू कोई पुछ लवे तुहाडा पार ब्रह्म पत परमेश्वर किन्ना वड्डा, तुसी दस नहीं सकदे। ते जे मेरे कोलों कोई पूछे कि तेरा सिख किन्ना वड्डा, ते मैं कहना मेरे नालों बड़ा वड्डा, जिसदी मैं आद जगाद सेव कमारिया, मेरा सिख मेरे नालों बहुत वड्डा है। सरबहर संगत जी, परमात्मा दे फरमान नूं सत करके मन्ना, निंदिया चुगली तो दूर रहना, हसद नफरत तो दूर रहना, सच परमेश्वर दे द्वारे ते सदा ही सच दी तार दे विच विचरना। सच दी तार दे विच विचरदियां होया, संसार दे विच रहंदियां होया, अपने आप नूं निर्माणता दा पक्ष लैके उस परमेश्वर दे दसे होए हुक्मां नूं मनना। क्योंकि परमेश्वर दा फरमान है कि तुहानू कोई लोक लाज नहीं होनी चाहिए। तुसी सारे संसार दे विच होका दे सकते जो कि साडा सतगुर है, साडा परमेश्वर है, साडा भगवान है, जिसने सानू मात लोक विच आके तार दिता ते सानू 1,84 जूनी विचों बाहर कढ़ दिता। क्योंकि परमेश्वर तो बगैर साडा कोई पार उतारा कर सकदा नहीं सी। एहो भगवान दी वडियाई है कि वह भगत नू गोदी उठालदा, ऐसी गोदी अपनी अगम्मी गोदी विच उठाल के साडी जीवन धारा नू परमेश्वर आप बदलदा, साडी जीवन धारा दे विच परमेश्वर आप तब्दीली लियाउंदे ने। जदों तब्दीली आ जाती है जीवन विच, जीवन की जांच बदलदी, जीवन की खाश बदल जाती है, जीवन का मकसद कुछ होर हो जाता है। परमेश्वर की कृपा दे नाल साडा जीवन का एक मकसद है, परमेश्वर के चरना दे नाल जुड़े रहना ते परमेश्वर तो कृपा मंग के। बाकी बिना पुरखे अकाल तो इस जिंदगी का नहीं कोई मुल, करता कीमत ना कोई रखा। अकाल पुरख तो बिना साडे जीवन का कोई मुल नहीं। जे असी अपने परमेश्वर नूं भुल गए, असी संसार विच आए जां ना आए एक बराबर हाँ। अज असी परमेश्वर दे नाम की वडियाई करनी, परमेश्वर दे नाम का हुक्का देना, परमेश्वर दे चरना दे दास बनना। इस दे नाल ही सरबहर संगत जी, मैं परमेश्वर दे चरना पासों खिमा चाहुंदी हाँ। जींदियां जग लो जीत, मरियां तो बाद मरन दी लोड़ रहे ना राइया। तेरा दस कीतियां दीन दुनी तर जावे, माड़ा मणके दी लोड़ रहे ना राइया। सरबहर संगत जी, यही परमेश्वर की वडियाई है। इस दे दर्श की लगी रहनी उड़ीक, लभ्या हथ किसे ना आईया। आओ परमेश्वर की उस प्यार की तार विच सतगुर प्यार लई वो लफज जो हजूर शहनशाह जी ने अपने पवित्र हस्त कमलों नाल लिखे ने, मैं ज़्यादा नहीं बोल सकूँगी। सतगुर दे प्यार विच उस शब्दी जयकारे नूं बोलना, हे अकाल पुरख तू मेरा ते मैं तेरा। इस दे नाल ही मैं खिमा चाहूँ। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहंग महाराज शेर
शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय।